ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪੋਲ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਈਡੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। VOTING ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ elections.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-463-6868 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੌਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਢਾਉਣਾ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣਾ, ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਸਹਿਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ PK ਸਹਿਗਲ ਨੇ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। देखो, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जंग हो सकती है, लेकिन किस माफी की जंग होगी, कितनी भयंकर होगी, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो पाकिस्तान ने किया पहलगाम में, वो हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर हमला सी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। पूरा का पूरा देश एकजुट हो गया। पूरी की पूरी अपोजिशन पार्टीज पिछले 10 साल में आज सरकार के साथ खड़ी हैं और हर प्रकार से सरकार को आश्वासन दे रही है कि तुसी जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ हैं। किसी माफी कश्मीर का जो है 100% जो है सरकार के साथ खड़ा है। पहली बार है कश्मीर ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, पाकिस्तान को कंडेम किया है। और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें मिरवाइज हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, सदत लोन है, जो आमतौर पे हिंदुस्तान के खिलाफ बातचीत करते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जो पाकिस्तान ने काम किया है बिल्कुल गलत किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है जिन्होंने इस कार्य को किया है वो आतंकवादी, उनके पीछे जो उनके आका हैं और उन्होंने जिन्होंने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद की, हम वो दुनिया में जहाँ मर्जी छुप जाएं, हम उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको ट्रैक करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे और ऐसे ही सजा देंगे जिसका उनको अंजाम भी नहीं है। और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि देखो, हर पाकिस्तान ने हमको 2008 में मुंबई में हमला किया, उसको डिनाई किया। फिर पठानकोट एयरबेस के ऊपर हमला किया, डिनाई किया। जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमन की कोई वो लाहौर यात्रा के लिए गए, तो लाहौर यात्रा के बदले क्या आपका कारगिल हो गया, कारगिल को भी उन्होंने डिनाई किया कि हमको हमारा कोई लेना देना नहीं। कम से कम 500 से 600 अपने सैनिकों की बॉडीज की को भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे सैनिक ही नहीं है। फिर आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी 31 दिसंबर 2014 को अचानक अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे, अचानक इस्लामाबाद में लैंड किए, नवाज शरीफ के घर गए, उनके माता जी के पाँव भी छुए, मतलब अमन की कोशिश की। लेकिन उससे अगले ही दिन 1 जनवरी 2015 को पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया। फिर जब हमारे 19 सैनिक उन्होंने मारे उरी में, उसके बाद भी कहा कि भाई ये तो आपका अपनी इंटरनल है, आपके लोगों ने मारे हैं, हमने कुछ हमारा लेना देना नहीं। फिर आपका जब पुलवामा में 40 CRPF के जवान, यही अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया कि आतंकवाद जो है
इसको खत्म करना है, और इस जी आतंकवाद को खत्म किया जाएगा जब पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, वहाँ की जो सिविल सरकार है वो तो एक किस्म से कठपुतली है, वो तो फसाड है। और जब तक हम पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई को हिट नहीं करेंगे, उनके एसेट्स को हिट नहीं करेंगे, ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। दुनिया में आज कहीं भी आतंकवाद होता है, चाहे रशिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जी मैंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई और 99 की लड़ाई। 65 की लड़ाई मैंने पंजाब में ही था। एकजुट होके पंजाब दे सारे लोग जी एकजुट होके हमारे साथ थे। जी हमको खेतों में अनाज भेज रहे थे, हमारे एमुनिशन ला रहे थे, सब हर प्रकार की मदद की थी। और गुरुद्वारों में भी साफ तौर पे कहा जा रहा था कि डरन दी लोड़ नहीं हैगी, दुश्मन को सबक सिखाने दी लोड़ हैगी। जी उस समय 65 में अमेरिका भी पाकिस्तान को मदद कर रहा था, ब्रिटेन भी पाकिस्तान को मदद कर रहा था। उनके प्लान्स थे कि ब्रेकफास्ट करेंगे जम्मू में, लंच करेंगे जलंधर में और दिल्ली में करेंगे रात का खाना, लेकिन रिजल्ट उतना उल्टा हुआ। फिर 71 की लड़ाई, उसके बाद मैं 8 साल पंजाब में था, जब पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी हुई। लेकिन बहुत लाजमी है कि हमारे देश के लोग जो है समझें कि आपकी सरकार है, हम आपकी खुशहाली चाहते हैं सर। हम नहीं चाहते कि देखो आए दिन पाकिस्तान जो है ड्रोन्स के माध्यम से पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में असला भेजता है, नशा भेज रहा, असला भेज रहा। जी जी हमारे युवकों को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स भेज रहा है, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए फेक करेंसी भेज रहा है। और देखो 60 to 65% लोग जो है बॉर्डर एरियाज के, जी चाहे वो बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे राजस्थान में हो, बहुत ज्यादा आज ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं। चाहे वो मान की सरकार थी या उससे पहले थी, सबसे बड़ा मसला पंजाब के सामने है कि हम अपने युवकों को ड्रग्स से कैसे बचाएं। और इस ड्रग्स की बुनियाद कहाँ है? पाकिस्तान। इसलिए बड़ा लाजमी है कि, और ये जो है हमारी जो जीरो लाइन है, जहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग है, बॉर्डर फेंसिंग से जीरो लाइन जो है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर तकरीबन 1 किलोमीटर गए गए, और इनके अंदर रास्ते खुले हुए हैं। हम नहीं चाहते कि उन रास्तों को, जो खुले हुए रास्ते को पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले और फिरोजपुर में आ जाए या किसी पुरानी जगह में आ जाए। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम उनको रास्तों को बंद कर देंगे जी। और इसीलिए सरकार ने कहा है कि जिनकी ये हमारे फेंसिंग से दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर तक फसलें काटें, जल्दी से काट लो और जल्दी से संभाल लो विद इन 48 आवर्स, क्योंकि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। अगर आप देखो, रक्षा मंत्री जी सुबह 11 बजे मिले, अजीत डबल साथ थे, कुछ ना कुछ बड़े फैसले ले लिए होंगे। आज दोपहर को 3 बजे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। हमारे प्रधानमंत्री जो बड़े ग्रेट लिसनर है जी, वो दूसरों की बातचीत भी सुनेंगे, लेकिन अपने विचार नहीं देंगे। कि कहा जाता है कि सीक्रेट शेड इज अ सीक्रेट लॉस्ट। जो फाइनल डिसीजन ली गई है वो केवल 3 या 4 लोगों को ही पता होगा, जैसे अजीत डबल को होगा, डिफेंस मिनिस्टर को होगा, प्रधानमंत्री को होगा और शायद सीडीएस को होगा, इसके अलावा और किसी को नहीं होगा। और हिंदुस्तान की जी फौज है, आज सारा देश, सारी दुनिया हमारे देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू, देश की छवि की गार्डियन एंजल के तौर पे समझती है। जी 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 ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 1965 ਦੀ ਜੰਗ, 1971 ਦੀ, ਫਿਰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੂਮਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। देखो, जो लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं वो बॉर्डर स्टेट्स के हैं जी। गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, ये सारे बॉर्डर स्टेट्स हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ के लोगों को हुआ जी। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त हम जब हमला करेंगे, उनकी रिटेलिएशन तो 100% होगी। ड्रोन्स के माध्यम से होगी, आपके हवाई जहाजों के माध्यम से हो सकती है, उनके पैराड्रॉपिंग के माध्यम से हो सकती है। उन्होंने इस्पाफी की पैराड्रॉपिंग 65 वगैरह में भी की थी, आपको याद होगा, आदमपुर के पास में उन्होंने की थी, हलवारा के पास में की थी। हमारे लोगों को चौकन्ना होना है कि जब वो ड्रोन्स के माध्यम से देखते हैं कि कुछ सामान गिर रहा है, वो सामान ऐसा गिर रहा है जो देश को तोड़ने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। सारे के सारे जो देश थे,
140 करोड़ लोग हैं, टू पेयर्स ऑफ आइज हैं, ये हमारे देश की इस समय एक किस्म में ढाल है। जी उन्होंने जैसे ही कोई दिखता है, सबसे नजदीक आपके जो SHO है, सिक्योरिटी पीपल है, उनको बताइए। साथ ही साथ कोई भी, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, कोई बहुत बड़ी जंग इधर नहीं होगी। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है। जी उसके पास तो हवाई जहाज चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, टैंक्स के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं है, बख्ताबंद गाड़ियों के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं है। उसके जहाज जब उड़ रहे हैं पाकिस्तान से लिए हुए J-17, उनमें उनमें क्रैक क्रैक आ रहे हैं। जी उनके रडार जो पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे थे, अभी जब उनको टेस्ट करने लगे तो रडार काम नहीं कर रहे। उन्होंने एयर डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान चाइना से खरीदा, वो भी बेकार निकला। लेकिन हमने हमने यकीन करना है कि हमने अपना संयम नहीं खोना। जी हम अपने फौजियों के पीछे, उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर देश को साफ तौर पे लगे कि सारी देश की, हमारी हुकूमत जो है, हमारे अवाम जो है, हमारे जो देशवासी हैं, अगर साढ़े पीछे खड़े रहते, वी आर एब्सोल्युटली सॉलिड। जी कहा जाता है कि मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस मैन बिहाइंड द मशीन को आपने हर प्रकार से सपोर्ट करना है। जी बड़े पंजाब में भी आप देखोगे बहुत बड़े पैमाने पर आर्मी डिप्लॉय होगी। उनके लिए असला ले जाइए, उनके लिए वेपन ले जाइए, उनके लिए खाना पानी ले जाइए। मैं जब था खेतों में, वो इतना दूध पिलाते सी, इतनी लस्सी वगैरह पिलाते सी, इतनी मक्की शक्की की रोटी खिलाते थे उस समय। क्योंकि युद्ध अगर आपको याद है तो मेरे ख्याल अक्टूबर नवंबर के महीने में 65 का या सितंबर में हुआ था। जी फसलों को फॉर्चुनेटली ये इस समय फसल कट के ही दिए, नहीं तो फसलों को भी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन सरकार उसकी भी कॉम्पनसेशन पे करेगी। जो छोटे छोटे पुल हैं, जब हमारे टैंक्स उसके ऊपर गुजरेंगे, छोटे छोटे पुल जो है, जो क्लास 70 नहीं है, वो टूट जाएंगे। जी सरकार हर प्रकार से कॉम्पनसेशन देगी, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर जिसकी फसल भी उधर रह जाती है, बॉर्डर के पास उधर रह जाती है, यकीनन मान सरकार जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको मुआवजा देगी, आपको कॉम्पनसेशन देगी। आपको किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप देश की सबसे बड़ी ढाल है, सबसे बड़ी ताकत है, और फौजियों की ताकत आप ही हैं। जी अगर फौजियों को साफ तौर पे नजर आए, हम तो फौजी समझ लो 13 लाख या 14 लाख रहे, कि हमारे 13-14 लाख के पीछे 100 करोड़ लोग खड़े हैं, 140 करोड़ खड़े हैं, तो इमेजिन मेरा हौसला कितना बुलंद होता है। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। देखो, उसके खिलाफ तो आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एटम बम इस्तेमाल करता है, समझ लो न्यू दिल्ली के कम से कम मेरे मुताबिक 8 से 10 लाख लोग मरेंगे। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को रिंग करके बोला कि पाकिस्तान ने F-16 मूव कर दिए, न्यूक्लियर बम लोड कर दिया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल भी मूव कर दिए हैं। आप आइए समझौता कीजिए। नवाज शरीफ जो पहले ही वाशिंगटन में है, और समझौता क्या था कि कुछ हिसाब करगिल का उनको दे दीजिए, उनको सौंप दीजिए। अटल बिहारी जी वाजपेयी का जवाब था कि आप उन्हीं से बातचीत कीजिए, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की बम हमारे ऊपर छोड़ने के लिए या मिसाइल छोड़ने के लिए, मैं उनको दावे से बताना चाहता हूँ, 8 से 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान का हमेशा के लिए नामो निशान हिंदुस्तान मिटा देगा। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। देखो, 1948 की लड़ाई जो हुई, 1965 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, 1999 की लड़ाई हुई, चीन ने किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की। लेकिन चीन अभी मेरे मुताबिक दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर हमने पीओके के ऊपर हमला किया और पीओके को मिलिटरी कैप्चर करने का किया, तो चीन जरूर इंटरवीन करेगा। लेकिन हम किसी प्रकार से, हमारा कोई इरादा ही नहीं है कि पीओके को हमला करके उसको कैप्चर करें, क्योंकि पीओके चीन के $65 बिलियन का सीपैक जो बना है, वो पीओके से ही हो गया। पीओके के अंदर इस समय चीन की वास्तव में लेबर
अंडर द गाइज ऑफ लेबर की वो लेबर है, 102 डिवीजन फौज की बैठी हुई है। उन्होंने पहाड़ियों की केव्स के अंदर मिसाइलें और बड़े तोपें रखी हुई हैं। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि किसी प्रकार से हम पीओके के ऊपर हमला नहीं करें, और ना ही करने की आवश्यकता है। आज पीओके बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। और हमने जब उरी के बाद स्ट्राइक की थी तो पीओके में स्ट्राइक की थी, जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तो पख्तूनख्वा में। अभी बड़ा लाजमी है कि हम पाकिस्तान के हार्टलैंड पंजाब के खिलाफ सारे ही हैं, सिंध भी खिलाफ है, बलूचिस्तान भी खिलाफ है, पख्तूनख्वा भी खिलाफ है, पीओके भी खिलाफ है। तो हमने जितने भी स्ट्राइक करने टारगेट्स आर्मी या आईएसआई के, वही मुसीबत की जड़ है। पाकिस्तान की सरकार तो एक किस्म पिट्ठू है, कठपुतली है जी। आपको याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ तो मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको बताया भी नहीं था कि वो इस माफी की कार्रवाई करने वाले। कल जब शहबाज शरीफ बातचीत कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर जाहिर कर रही थी कि उनको भी नहीं बताया गया कि इस माफी का पहलगाम कार्रवाई करने जा रहे हैं जी। और उनको अभी जब उन्होंने पानी सिर तो निकल गया तो आर्मी वाले अभी कह रहे हैं कि भाई सरकार को हमको बचाओ, आप बात करो बाकी देशों से जी। और सारे के सारे देश इस समय हिंदुस्तान के साथ हैं सिवाय टर्की को छोड़ के। अगर देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के वीटो पावर था, चाइना चाहता था पाकिस्तान की कंडेमनेशन को रोक सकता था, पहले भी उसने टेररिस्ट को ब्लॉक किया, लेकिन चाइना ने भी साफ तौर पे देखा दुनिया पूरी की दुनिया एकजुट होकर हिंदुस्तान के साथ है। 19 प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने मोदी जी को रिंग किया है, 45 एम्बेसडर्स को हमने ब्रीफ किया, G20 के एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को शेप किया है। आज सारी दुनिया चाहती है कि टेररिज्म को खात्मा किया जाए। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे पहले, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई देश दुनिया में है जो टेररिज्म का खात्मा कर सकता है तो वो हिंदुस्तान है। और उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो हिंदुस्तान को हर प्रकार की सहायता दूंगा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है फोन करके कि आपको हमसे कुछ भी चाहिए, आपको असला चाहिए, आपको साइबर कैपेबिलिटी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैक्रोन ने भी यही कहा है, पुतिन ने भी यही कहा है। सिर्फ केवल और केवल अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान में टर्की के कुछ जहाज जो लैंड किए असला और ड्रोन वगैरह लेकर जी, रिटेलिएशन तो पाकिस्तान से होगी, लेकिन पाकिस्तान बड़ा घबरा हुआ है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान इस बार करेगा तो क्या करेगा। क्या वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਵਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਅਸਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? देखो पाकिस्तान की तो जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान जो है जंग ना छेड़े। उनके प्रधानमंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं, चीन से के पास भी गए कि भाई हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है कि ये बाइलेटरल मसला है। न्यूट्रल का मतलब है कि पाकिस्तान को वक्त देने का, और वक्त दोगे तो तैयारी और मजबूत हो जाएगी। हमने साफ तौर पर उनको कहा कि इस बारी जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है नेवी की तरफ से, आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, आर्मी के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ अरेबियन सी में। इसलिए पाकिस्तान कंप्लीटली बैकफुट पे, उसको समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर वर्टिकल डिवीजन हो गया है जी। आर्मी चीफ के 3 कोर कमांडर ने अपनी बीवियों को, अपने परिवार को, एक ने लंदन में भेज दिया, एक ने कनाडा में भेज दिया, एक ने न्यू जर्सी में भेज दिया, एक ने ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। तो पिछले 3 दिन से उनके आर्मी चीफ बंकर में बैठ गए। आर्मी चीफ तो आगे फ्रंटलाइन ट्रुप्स का मोराल। फिर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में का मोरल मोटिवेशन इतना गिर गया है कि क्वेटा के कोर कमांडर ने आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखी है जो अभी मीडिया में दर्शाई जा रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 48 घंटे में तकरीबन 1000 ऑफिसर्स ने और 10,000 उनके सैनिकों ने रिजाइन कर दिया है जी। वो कहते हैं हम इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो ये तो पाकिस्तान का हालात है। लेकिन जहाँ पे हमने जागृत रहना है या चौकन्ना रहना है, हमारी जितनी मूवमेंट होगी आपसे पूछने की कोशिश करेंगे ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आपने कोई इंफॉर्मेशन दुश्मन को नहीं देनी। वो आपसे कहेगा आपकी टैंक्स की मूवमेंट किधर हो रही है, आपके हवाई जहाज किधर चल रहे हैं जी, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारी जो रिजर्व फोर्सेस हैं बड़ी दूर बैठी हैं। कोई तो बैठा है कोटा में डिवीजन बैठी है, फिर भोपाल में स्ट्राइक कोर है, फिर सिकंदराबाद में बैठे हैं। ऑब्वियसली फॉरवर्ड मूवमेंट्स हो रही हैं जी। हमारी एयर डिफेंस वगैरह की कहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ है,
भाई अमृतसर एयरफील्ड के कोई पास में या वहाँ पे जो रडार स्टेशन हैं उनके पास में क्या क्या आया है, कब आया है, कितना आया है, कितनी बड़ी तादाद में है, वो सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। कि आपके पता क्या लगेगा कि आपके आर्मी कमांडर अभी भी घर में है या जी। घर से चले गए हैं, कोर कमांडर घर में है या डिविजनल कमांडर घर में, उनकी मूवमेंट और गए हैं तो कहाँ गए हैं, कब गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत लाजमी है दुश्मन के लिए। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ बड़े पैमाने ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बिल्कुल सही कह रहे हो। उस समय जब हम 65 या 71 की लड़ाई थी, हमारी वाइफ्स को जी फोन आता था कि हम आपके पति के बड़े अच्छे मित्र हैं, हम हम उनसे बात करना चाहते हैं, वो इस समय कहाँ जी। हैं। और वाइफ्स ने गलती से बता दिया कि वो तो मूव कर गए भाई, वो कहाँ गए, गंगानगर में आगे चले गए हैं। दुश्मन को नहीं बताना, वो कहेगा कि मैं आपके पति का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपके बड़ा अच्छा फ्रेंड हूँ, मैं उनके बड़े अच्छे जानता हूँ, बड़े ताल्लुकात है। ये सारी की सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। आज के माहौल में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, डिसेप्शन इज अ पार्ट ऑफ वॉरफेयर। जी जी जी। दुश्मन बड़े पैमाने पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डिसेप्शन, ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਕਾਫਲਾ ਫੌਜ ਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। हाँ, हमारे लोगों की बड़ी जबरदस्त कोशिश होती है कि कोई जा रहा है तो उसके वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं। ये जैसे ही वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, दुश्मन के पास आज काबिलियत है जी उसको मदद करने के लिए, आप उसकी मदद कर रहे हो। आप देखो हर चैनल पे पूछा जा रहा है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम किन हमने सब ने क्या किया एज रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री लीडर, सीनियर लीडर्स, हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं कर सकते। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ये पाकिस्तान का जबरदस्त सोशल मीडिया जो है जबरदस्त एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा कर रहा है, फौज के बारे में फिल्टी बातें कर रहा है। उसी को निगाह के में रखते उसके 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए हैं। हिंदुस्तान ने बीबीसी को भी चेतावनी दी है, बीबीसी भी मिस्टीरियस तरीके से इस सारे चीज को पेश कर रही है। तो हमने यकीन करना है कि हम इन चैनल्स को देखने की कोशिश ना करें। यूट्यूब वगैरह खोलने की आजकल जरूरत ही नहीं, जंग खत्म हो जाने दो, ये जो भी होता है इसको खत्म हो जाने दो, उसके बाद जितना मर्जी देखो। और गलती से भी कोई वीडियो लेके पोस्ट नहीं करो और कोई ऐसी चीज इन्फॉर्मेशन पोस्ट नहीं करो जिसका फायदा दुश्मन को हो सकता है। दुश्मन के बाद बड़े हैकर्स हैं, जो भी आपके फोन पर है उसको वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है जी। आप इसको 100% यकीन करके करो, वो लिफ्ट हो सकती है। क्योंकि आपके आधे फोन तो हैं वो बने हुए हैं मेड इन चाइना, उनमें क्या कोई सेंसर डाला हुआ है जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सारी इन्फॉर्मेशन चाइना को जा रही है और चाइना पाकिस्तान को पास करेगा। आपने यकीन करना है कि किसी प्रकार से कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई ऐसी बातचीत ना करें, कोई ऐसा वीडियो ना बनाए जिसका केवल और केवल फायदा हमारे दुश्मन को होगा, ना कि हिंदुस्तान को। ਸਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 65 ਦੀ ਜੰਗ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ 99 ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਦੀ, 71 ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। देखो आपके कुछ वाइटल ब्रिजेस हैं जिसके ऊपर फौज की मूवमेंट जाती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बहुत लाजमी है। दुश्मन की जबरदस्त कोशिश थी उन पुलों को बर्बाद करना। अब आपने यकीन करना है कि आप हर प्रकार से चौकन्ने रहिए। उन पुलों को बर्बाद कर सकते हैं ड्रोन्स के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से और ग्राउंड एलिमेंट्स के। पाकिस्तान के सपोर्ट में हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर भी स्लीपर सेल्स हैं जी, वो बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जिस छोटे छोटे कलवर्ट्स हैं सड़कों के ऊपर, छोटे छोटे पुल हैं, तो अगर पुलों को 3-4 कर दिया गया तो फौज की मूवमेंट में बहुत टाइम एंड डिले हो जाता है जी जी। पाकिस्तान के
कि जो स्लीपर सेल्स है इस माफी की कार्रवाई करने, आपको चौकन्ना रहने, नजर आंखें खोल के रखो, आंखें कान खोल के रखो। जब भी इस माफी की हरकत देखते हो या तो उसको दबोच लो या इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन उनको दो जिनको देने की आवश्यकता है। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। इन्फॉर्मेशन इज पावर। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन आती है ना, हम संभाल के बैठ जाते हैं। बड़ा लाजमी है कि आप तुरंत से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें उनके साथ में, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में, बीएसएफ के साथ में, आपकी अपनी पंजाब पुलिस के में, अपनी आर्मी यूनिट्स के साथ, पंजाब जल्दी से जल्दी, ताकि कोई ना कोई हादसे से को इससे पहले अंजाम दे सके, हम उनको पकड़ लें। ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਫੀਸਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। फिर जो हमारे एसएचओ हैं जी, वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। वो चप्पे चप्पे के ऊपर उनकी निगरानी होती है। कोई भी नया आदमी आया किसी इलाके में जी, वो कहाँ से आया, क्यों आया, क्या कर रहा है, किस लिए आया, किसके घर रह रहा है, ये तमाम कोई भी थोड़े इलाके से कोई नया बंदा आंदा है, आपने तुरंत से उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है एसएचओ को, ताकि एसएचओ जो है वो इन्फॉर्मेशन पास कर सके, उसके ऊपर नजर रख सके जी। क्योंकि ये तमाम लोग जो ऐसे लोग होंगे जो वास्तव में दुश्मन को सपोर्ट करने के लिए वहाँ आए हैं। वो ऐसे इलाकों में आएंगे जहाँ पे आपकी मूवमेंट्स हो रही है, जहाँ से आपकी लॉजिस्टिक ट्रेन जाएंगी, जहाँ से आपके असला जाएगा, जहाँ से सब चीजें आगे जाएंगी, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए जी जी। ऐसे तो ये इन्फॉर्मेशन। फिर लड़ाई में बहुत चेंजेस हो चुके हैं। 65 की लड़ाई है, 71 की लड़ाई है, 99 की लड़ाई आजकल की कम्प्लीटली खत्म हो गई है। आजकल है बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, एंटी ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, फिर साइबर वॉरफेयर होगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा, स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम होंगे, चार्ज बीम पार्टिकल वेपन्स है। हमारे पास अभी बहुत सारे साधन है जिसमें हिंदुस्तान को किसी प्रकार से भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, ना तो हमारी एयरफोर्स को ना आर्मी को। हम पाकिस्तान की टोटल डेप्थ है 450-500 किलोमीटर। जी जी। हमारे पास हथियार हैं कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान में 400 किलोमीटर तक उनको मार सकते हैं बिना बॉर्डर क्रॉस किए। जी जी। आपके राफेल के पास में स्काल्प मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। सो 500 किलो। फिर आपके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। पाकिस्तान के जितने भी रनवेज हैं जो बॉर्डर से 200 किलोमीटर की नजदीकी हैं, जैसे ही वो टेक ऑफ होता है आप उसको शूट कर सकते हो राफेल के माध्यम से जी। उनके पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें सिर्फ 60 किलोमीटर की रेंज के पास है, आपके 200 किलोमीटर की रेंज। तो हमारे पास बहुत, फिर हमारे पास लॉइटर एमुनिशन है जो बॉर्डर एरिया दुश्मन के इलाके में घूमता रहता है, जो टारगेट उसको दिया हुआ है जब वो उससे मैच हो जाता है आपके हुक्म पर उसको बर्बाद कर देता है जी। इसलिए बहुत कुछ साधन है, बड़े विकल्प हैं जो पहले नहीं थे। ਸਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखो, किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के खौफ की आवश्यकता नहीं जी। आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इसको सारी दुनिया कहती है कि आज हिंदुस्तान की फौज जो है एकता अखंडता के लिए एक गार्डियन एंजल है जी। उसके ऊपर भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। आपने डरना नहीं, अपना जो काम करते हो रोज का वही अपना रोज का काम करो, अपने कारखाने करते को बिजी रखो जी जी जी। अपने काम को बिजी रखो, सब कुछ बिल्कुल वही करो जैसे रोज करते हो। ये स्टॉक मार्केट जो है उसमें जरूर, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इनिशियली जब अगर जंग शुरू होती है स्टॉक मार्केट गिरेगी फिर उठ खड़ी होगी, आपका डॉलर जो है और कीमती हो जाएगा। लेकिन ये उन लोगों को, ये जो व्यापारी लोग हैं या जिनके बच्चे बाहर जाते हैं वगैरह, जैसे मेरी बिटिया गई हुई है बाहर पढ़ने के लिए, ये हमारे लिए मुश्किल की घड़ी है, लेकिन पूरा सब ठीक हो जाएगा जी। फिर कोई दुकानें या मॉल्स को खाली करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में वहाँ लोग होड़ कर रहे हैं, चीनी
रख लो, आटा रख लो, ये रख लो, वो रख लो। हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं है, जी आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। नहीं तो लोग बहुत बड़े पे होड़ करना शुरू कर देते हैं जी कि राशन ले आओ, दालें ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। उनसे आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी करोगे जिससे कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जी देश में कोई कमी नहीं है, हम्म किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप देखो, क्या कोई पैनिक है इस बारी देश में? जी आपने कोई बड़ी मूवमेंट्स देखी है? पाकिस्तान हम्म की तरफ ये सब मूवमेंट्स हो रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ कुछ नजर आया आपको? जी सब कुछ साइलेंट है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, हम्म लेकिन इसकी बातचीत नहीं करते। ना तो मीडिया बातचीत कर रहा है। हम्म हमको प्रोवोक नहीं होना, जी हमको संयम इस्तेमाल, धैर्य इस्तेमाल करना है। और हम्म धैर्य और संयम से हम सब कुछ हासिल कर पाएंगे। हमको कोई इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना। ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 65 ਦੀ, 71 ਦੀ, 99 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਕੇ ਸਹਿਗਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵੱਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸક્ષਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸક્ષਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ SHO ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।